تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور خدا کا نور ہے غالبا چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالبا جو کھلتے ہیں مہکتے ہیں چمن میں پھول کو دیکھو جو کھلتے ہیں مہکتے ہیں چمن میں پھول کو دیکھو یہاں کے لال زاروں میں خدا کا نور ہے غالبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائے تشریف دنیا میں خیر اللہ حق باطل آمنے سامنے کفریت شر سے منہ چھپانے لگی آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما خبيرا سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رئيس الحفظ المبجل السادة الأجلاء والضيوف الكرام أشكركم على أنكم دعوتموني لإلقاء خطبة حول الموضوع يوم الحرية والاستقلال ولا أستطيع أن أشكركم حق الشكر. إخوة الوطن اليوم يوم 15 من شهر أغسطس يوم الحرية والاستقلال الذي نحتفل به فرحين مسرورين فكأنما نجدد ذكرى ذلك اليوم الذي قد تحررت بلادنا هند من سيطرة الإنجليز. وہ قرض اتارے کہ واجب بھی نہیں تھے. محترم سامعین کرام، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے. ہم سب یہاں آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے. تب ہم اسی شان و شوکت کے ساتھ آج عظیم و شان جشن آزادی منا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر پار سے آئے انگریز قابض ہو گئے تھے. ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم و ستم کرتے تھے. ہم اپنے ہی ملک اور اپنے ہی زمین پر ہم ان کے غلام تھے. ہم ان کے غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑ گئے تھے کہ
उससे निकलना आसान नहीं था। जब हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर जद्दोजहद की तो इस जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो गए। आखिरकार हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी और जुल्म सितम से आज़ाद हो गया। हाज़रीन मजलिस, हिंदुस्तान के आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला। ती आई आहे भाग्यशाली, तिच्या पोटी जन्मलेल्या वीरामुळे देश अखंड राहिला। स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजचे सभेचे प्रमुख पाहुणे, माझे गुरुजन वर्ग, माझे विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा। आज 15 ऑगस्ट म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्य दिन आहे। आजचा दिवस म्हणजे आपण सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाचा दिवस आहे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आझाद, भगत सिंग असे दोन पुरुषांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले। 15 ऑगस्ट 1946 रोजी आपल्या देशाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले। तर आपला भारत देश गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार अशा समस्या सुद्धा आहेत। आपण सगळे मिळून या समस्यावर मात केली पाहिजे। Respected chief guests, principal, teachers and all my dear friends, good morning to one and all. Today we have gathered here to celebrate the 78th Independence Day of our great nation. On this auspicious occasion, I feel honored to speak a few words about the significance of this day. The significance of Independence Day, 15 August 1947, marked the day when India broke free from British colonial rule after years of struggle, sacrifice and determination. It was a day when our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, hoisted the Indian tricolor at the Red Fort, signifying the birth of the free and sovereign nation. This day reminds us of the countless sacrifices made by our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Ashfaq Ullah Khan and many others who laid down their lives for our liberty. आज के सभा के प्रमुख अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे साथी, आज हम सब यहाँ एक बहुत ही खास अवसर पर एकत्रित हुए। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। यह दिन सिर्फ तिरंगे को फहराने का नहीं, बल्कि हमारे देश की आज़ादी को याद करने और उसे सलाम करने का दिन है। हमारे देश ने 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सही, पर वीरों की इस भूमि ने चुपचाप अन्याय सहना नहीं सीखा। चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी, इन सब ने एक आवाज में कहा, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आज हम जो खुलकर बोल सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं और सपने देख सकते हैं, ये उनकी ही कुर्बानियों की देन है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ आजादी पाना ही काफी है? नहीं, असली स्वतंत्रता तब है जब हर बच्चा पढ़ सके, हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर नागरिक को न्याय मिले और हर हाथ को काम मिले। आज का भारत सिर्फ इतिहास नहीं बना रहा, बल्कि चंद्रयान और डिजिटल इंडिया जैसे मिशनों से दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल। इसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। एक दिन आदम और हसन अपना इंडिपेंडेंस डे का प्रोजेक्ट बना रहे थे।
ये देखो हमारा तिरंगा कितना खूबसूरत है। अरे तिरंगा छुपाओ, वो देखो पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं। No Indian flag, no freedom, only British rule. The native dared to raise their sword against the crown, crush them. Stop. Let every Indian know what it means to rebel against the British. ये देसी लोग ताज के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत करते हैं। हर भारतीय को इसका एहसास होना चाहिए कि बगावत का अंजाम क्या होता है। हमें अपने ही देश में बोलने की आजादी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हसन, ये तो बहुत गलत हो रहा है। आदम, वो देखो गांधी जी आ रहे हैं। हम अहिंसा से लड़ेंगे, सत्याग्रह हमारा शस्त्र है। मैं अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ सब बराबर हो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जय हिंद। हसन, वाह, इन लोगों ने बिना तलवार के भारत को आजादी दिलाई। आदम, अब हमारा फर्ज है कि हम भारत देश को और अच्छा बनाएं। कि हम भारत देश को और अच्छा बनाएं। जान भारत पे देने को तैयार है, जान भारत पे देने को तैयार है। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने पे खाई डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाई डरे हम नहीं। वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं, वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं। सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार वफादार हैं। रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे, रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे। अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। ऐ वतन तेरी उल्फत
उल्फत में सरशार हैं, ऐ वतन तेरी उल्फत में सरशार हैं। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, जान भारत पे देने को तैयार हैं। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। सामने जब है मुश्किल कोई मरहला, सामने जब है मुश्किल कोई मरहला, पर्वतों से भी ऊंचा लिए हौसला, पर्वतों से भी ऊंचा लिए हौसला। मुश्किलें सामने अपने हमवार हैं, मुश्किलें सामने अपने हमवार हैं। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, जान भारत पे देने को तैयार हैं। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। हटना मैदान से हमको आता नहीं, हटना मैदान से हमको आता नहीं, बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं, बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं। फातिह जंग है गैर फरार हैं, फातिह जंग है गैर फरार हैं। हम वफादार हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ तलबा और तलबा के वालिदैन सरपरस्त, आप तमाम हज़रात के लिए ये बड़ी सआदत का मौका है कि आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश करते हुए देखा है। यकीनन वालिदैन को बड़ी खुशी होती है। जिस तरह से किसान होता है, काश्तकार होता है, जब वो देखता है कि उसकी नज़रों के सामने फसल अच्छी तरह से बड़ी हो रही है, तो उस काश्तकार को उस फसल को देखकर खुशी होती है। तो ऐसे ही वालिदैन को भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उन बच्चों का तरक्की करना, ये भी वालिदैन को देखकर बड़ी खुशी होती है। तो आप तमाम हज़रात के लिए बहुत ही मुबारक हो कि आपके बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और इल्म दीन के साथ साथ ये स्कूल का भी नज़्म यहाँ पर कायम किया गया है। उसकी वजह से हमारे बच्चों के जो प्रोग्राम में, जैसे ख़ास तौर पर जो आखिर में जो प्रोग्राम पेश किया गया, उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चों के अंदर जो जुर्अत थी और उनमें जो डेयरिंग थी, तो ये हमारे जो पहले के जो मदारिस हैं उनमें इस लिहाज से थोड़ी सी कमी पाई गई, जिसको अभी माशाल्लाह हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले सर भी मौजूद हैं, जो हर हफ्ते में देते हैं। वीकली वो बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं। ये काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस ज़माने में। बहुत से लोगों को सही टाइम पे काउंसलिंग न मिलने की वजह से उनके अंदर जो सलाहियतें अल्लाह ने रखी है, वो सलाहियतें निखरने का मौका ही नहीं मिलता। एक बहुत अच्छा आदमी जो बहुत कुछ कर सकता था, उसको सही टाइम पे उसको काउंसलिंग नहीं मिली, तो नतीजा ये हो गया कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। तो हमारे यहाँ इन बच्चों को काउंसलिंग भी दी जा रही है, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जुर्अत बढ़ रही है। वरना हमने बहुत सारे मदारिस में पढ़ने वाले उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, उनको ये देखा, ये इस तरह से हमने महसूस किया कि वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं। इस तरह की जो सोच है वो इन बच्चों में इंशाल्लाह नहीं आएगी। जिस अंदाज से हमने देखा है इन बच्चों को,
इंशाल्लाह ये हमारी कौम के मुस्तकबिल, ये हमारी कौम का एक रोशन मुस्तकबिल बनेगा इंशाल्लाह। और हर एक बच्चे से अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम लेंगे। इसलिए वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की जुर्अत को बढ़ाने वाला कदम उठाएं। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसको ऑर्डर का दौर देकर नहीं चलेगा काम। ये भी समझने की जरूरत है कि बच्चे की तरबियत में एक जमाना ऐसा होता है जिसमें उसको आप ऑर्डर देते चले जाओ, चल बेटा उठ जा, चल बेटा बैठ जा। तो आपने उठ बोले तो उठ जाएगा, बैठ बोले तो बैठ जाएगा, लेट बोले तो लेट जाएगा। आप जो भी काम बोलेंगे वो कर लेगा। लेकिन इसकी ये उम्र की एक लिमिट है। ये लिमिट कहाँ तक है? बहुत से बहुत हो गया तो 12 से 13 साल तक की ये लिमिट है। लेकिन आपका बच्चा जैसे ही 13-14 साल की उम्र में कदम रखेगा, अब आप ये सोचेंगे, बाप ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को वैसा ही ऑर्डर करूं जैसा बचपन में किया करता था, और माँ ये सोचे कि मैं अपनी बच्ची को ऐसे ही चिल्ला पुकार करूं और ऐसे ही डांट डपट करूं जैसे मैं बचपन में किया करती थी। तो फिर आप सोचिए और आप अफसोस मनाइए आपके इस मिजाज पर कि फिर आपके और आपके बच्चों में फासला बढ़ना चालू हो जाएगा, आप में और आपके बच्चों में गैप आना चालू हो जाएगा। फिर वो बच्चा आपको अपना खैर खा नहीं समझेगा। इसलिए 13-14 साल के बाद वाली जो उम्र होती है उसमें बच्चों की तरबियत जब की जाएगी तो उसमें शफकत गालिब होनी चाहिए। उसमें ऑर्डर का दौर नहीं, उसमें तश्कील का दौर चलेगा। जैसे तश्कील करते हैं ना किसी की, तो उसको इस बच्चे को सनद नहीं एक तमगा दिया जा रहा है और मदरसे की तरफ से उस्ताद को भी 5,000 रुपये और तालिब इल्म को भी 5,000 रुपये दिए। तो अब मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा इन उलमा। अदनान जो इस साल का हाफिज कुरान है, अदनान इसमें आशिक कुरान उज़ैर फैयाज शिकलगर। माशाअल्लाह। इसके बाद दूसरा नाम उमेर जहीरुद्दीन शाह। मैं हाफिज साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ नबील अकलीम खान, नबील अकलीम खान को अपने हाथों से आशिक कुरान का अवार्ड। असद सलीम खान, बिग क्लब। जिन बच्चों के नाम लिए जाएंगे वो जल्दी जल्दी आगे आओ, अपना इनाम ले लो।